एवरीवन, आई होप आपकी क्लैट पीजी एंड एलिट पीजी 2023 की तैयारी काफी अच्छी चल रही है। आई वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज. I am Bhumika Indori, product coordinator, Legal Edge After College. In this video, I'll be discussing with you relationship between 102nd and 105th constitutional amendment. Now, these two amendments are very important for your upcoming examination. So watch the video till the end and you are going to gather a lot of information relevant for your upcoming CLAT PG examination. So let's start. First of all, we'll start with the question. Now, here the question says, among following which article has not been amended by 105th Constitutional Amendment Act? Now, here the articles are Article 366, Article 338B, Article 342A, and 341. We'll discuss about this question in the end of the video. So, तब मैं आपको बताऊंगी कि ये सारे आर्टिकल कहते क्या हैं एंड इसका सही आंसर क्या है. तब तक बने रहिए वीडियो में एंड आगे बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पे, विच इज रिलेशनशिप बिटवीन 102nd and 105th Constitutional Amendment Act. Now, when I talk about 105th Constitutional Amendment Act, what it has done. So it restored the state government power to prepare the socially and educationally backward classes list. So what happened, 102nd Constitutional Amendment जब हुआ था तो उसके होने के बाद मराठा रिजर्वेशन का इशू आया. ठीक है, तब सुप्रीम कोर्ट ने 102nd अमेंडमेंट को इंटरप्रेट किया है. इंटरप्रिटेशन के टाइम पे ये कहा कि 102nd अमेंडमेंट से जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर नहीं बचता कि वो इंडिपेंडेंटली किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट में डाल सकें, विच इज SEBC लिस्ट में डाल सकें. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसने अमेंड किए बहुत सारे आर्टिकल. पहला आर्टिकल है 342A, इसको अमेंड किया गया एंड इसमें क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 जो है वो अमेंड किया गया. इसमें चेंजेस किए गए क्लॉज 1 में, क्लॉज 2 में एंड उसके साथ साथ क्लॉज 3 को ऐड भी किया गया. ठीक है, 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से. उसके साथ साथ आर्टिकल नंबर 366 में अमेंडमेंट की गई एंड आर्टिकल नंबर 338B में भी अमेंडमेंट की गई बाय द वर्च्यू ऑफ 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. नाउ यहाँ पे जो थ्योरी लिखी है उसको देख लेते हैं. एज पर सुप्रीम कोर्ट, द 102nd Constitutional Amendment Act implied that state government did not have the authority to identify SEBC. As I mentioned कि 102nd अमेंडमेंट के बाद जो स्टेट है उसके पास जो पहले पावर हुआ करता था SEBC में, जो अथॉरिटी हुआ करती थी किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को उस ग्रुप में ऐड करने की, उस लिस्ट में ऐड करने की, वो खत्म हो जाती है. उसी को रिस्टोर करने के लिए 105th अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गया था. नाउ नीड क्या थी? जो भी चीजें हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की हैं वही चीजें कुछ मैनेज्ड वे में पैराग्राफ फॉर्म में यहाँ लिखी हुई हैं. इनको हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको हेल्प करेंगी. So, however, when 102nd Constitutional Amendment Act giving constitutional status to National Commission for Backward Classes was passed, it was interpreted by Supreme Court that 102nd Amendment had taken away the state right to identify SEBC. और कब हुआ था ये? सुप्रीम कोर्ट ने कब ये चीज कही थी? When Supreme Court was discussing the Maratha reservation case. All right. This fact came to light when a month after passing 102nd Amendment, the Maharashtra government law granting the Marathas a socially and educationally backward classes status was challenged to the apex court. In the apex court and the Supreme Court for the first time held that 102nd Amendment had taken away 102nd Amendment had taken away states power to recognize SEBCs. All right, now with the combination of Article 366, Article 338B and
The state were now obliged to consult NCBC and could not declare SEBC independently. Now understand one more thing here, that by the virtue of 102nd Constitutional Amendment Act, ठीक है, आर्टिकल नंबर 338 बी को ऐड किया गया था, 342 ए को ऐड किया गया था. व्हेन आई से 338 बी, तो ये बात करता है एनसीबीसी की, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की, एंड 342 ए ये बात करता है SEBC की, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की. 338 बी deals with National Commission for Backward Classes and 342A deals with socially and educationally backward classes. 102nd अमेंडमेंट ने आर्टिकल नंबर 366 को भी अमेंड किया था, जो बात करता है डेफिनेशंस की. ऑलराइट, नाउ विद द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिकल 366 338B, अब आप समझ गए, when I say 338B, it is National Commission for Backward Classes. The state were now obliged to consult National Commission for Backward Classes. Now after 102nd Constitutional Amendment, state पे ये obligation था कि वो National Commission for Backward Classes से consult करें before declaring any group of people independently as socially and educationally backward classes. Now, if 102nd Amendment had only inserted 338B, अगर यहाँ पे सिर्फ National Commission for Backward Classes ही add होता, the power of identification of the socially and educationally backward classes would have remained with the state. अगर यहाँ पे 342 एक ना ऐड होके सिर्फ 338B ऐड किया जाता by the virtue of 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो जो स्टेट से ये पावर चला गया था ये नहीं जाता, और फिर 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती. हेंस देयर वाज अ रिक्वायरमेंट फॉर द मॉडिफिकेशन इन 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. आई होप ये पूरी जर्नी आपको समझ आई होगी अभी तक कि 102nd अमेंडमेंट में क्या गलतियां हुई थी, क्या चीजें ऐड की गई थी, किन दो आर्टिकल के कॉम्बिनेशन की वजह से हमें रिस्टोर करना पड़ा स्टेट का जो पावर है डिक्लेयर करने का सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, और लेके आना पड़ा 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ऑलराइट, नाउ जो करेक्टिव कोर्सेज हुए हैं 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में वो क्या क्या है, तो it did nothing to remove the state government power to level SEBCs. 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने कुछ नहीं किया कि स्टेट के पावर्स जाएं कि वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को लेवल कर पाए. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज फेवर्ड द रिस्टोरिंग दी स्टेट्स पावर. ठीक है, तो सारी की सारी जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने यूनानिमसली ये डिसीजन दिया, यहाँ इसके फेवर में कहा कि रिस्टोर करना चाहिए स्टेट को पावर्स टू डिक्लेयर SEBC. Now, there was unanimous demand, ठीक है, we all know about this. सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद यूनानिमस डिमांड हो रही थी. Hence, 105th Constitutional Amendment Act was introduced in the Parliament and passed unanimously in both the houses. Not a single member voted against it in the Lok Sabha. This Parliament restored provisions providing state with authority to identify सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. अब हम देखते हैं इम्पैक्ट जो हुआ था 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का. मैंने आपको पहले भी बताया इसी लेक्चर में कि 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों लाया गया था, टू रिस्टोर द पावर टू रिजॉल्व द इशू जो 102nd अमेंडमेंट एक्ट से रेज हुए थे. तो इसने अमेंड किया 342A आर्टिकल को, और इसके क्लॉज 1 एंड 2 में अमेंडमेंट की गई और एक नया क्लॉज 3 ऐड किया गया, एंड अमेंडमेंट किए गए आर्टिकल नंबर 366 एंड 338B में. द एक्ट रिस्टोर्ड द स्टेट गवर्नमेंट पावर टू नोटिफाई द socially and educationally backward classes. Argument have been going on for and against the provision of constitutional reservation for years. We all know this, right? And यहीं से जो reservation का topic है वो important हो जाता है for your upcoming
CLAT PG and ALET PG examination. Now, even after many years of independence, we as a society are still trying to ensure equal right for our people and remove prejudice and discrimination through reservation. 105th Constitutional Amendment Act is one more attempt to create an equal society through federal equality. Now, Constitutional Amendment नंबर 105 जो कि रीसेंट अमेंडमेंट है, लास्ट अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इसने फिर से एक कोशिश की है कि ये जो रिजर्वेशन है, ठीक है, रिजर्वेशन के थ्रू जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी को मेंटेन किया जाए, इंश्योर किया जाए. It has ensured the states get back their right to create a list of socially and educationally backward group without consulting the National Commission for Backward Classes. All right, now जो हमने इन द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ. अब तक आपको आंसर समझ आ ही गया होगा बिकॉज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड this while discussing 102nd and 105th constitutional amendment. यहाँ पे आंसर होगा डी, यहाँ पे आंसर होगा 341. अब आर्टिकल 341 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बात करता है, तो ये डिफाइन करता है शेड्यूल्ड कास्ट को, ठीक है. एंड मैं आपको फिर से बता दूं, आर्टिकल नंबर 366 डेफिनेशंस की बात करता है, जबकि आप बाकी एक्ट्स में देखते हो जनरली जो सेक्शन 2 होता है वो डेफिनेशनल क्लॉज होता है. अनलाइक एनी अदर एक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो डेफिनेशंस हैं वो दे रखी हैं 366 में. कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताओ कि कौन सा ऐसा एक्ट है जहां पे इंटरप्रिटेशन इन डेफिनेशंस जो है वो सेक्शन 3 में है. जल्दी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना ये बात. 338B एंड 342A हमने ये डिस्कस किया है. 338B आपको NCBC के बारे में बात करता है एंड 338B NCBC के बारे में बात करता है एंड 342A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये SEBC के बारे में बात करता है. इट इज सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस. It is National Commission for Backward Classes. I hope you enjoyed the video. If you like the video, press the like button, share it with your friends, and keep working hard. Keep preparing for your examination. आपके कोई भी अगर डाउट है regarding upcoming CLAT PG and ALET PG 2023 examination, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, भूमिका इंदौरी साइनिंग ऑफ.